Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video we'll start with chapter number 8 of Most Passport 4. La soirée d'adieu means farewell party. So हमारी एक लड़की है एलेना who is just leaving. वो यूएस से जाने लग रही है for her further studies and that's why she is organizing a party कि वो जाने लग रही है इसलिए वो एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने लग रही है. सो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे एंड आदिया का हमारा मेन मीनिंग होता है लीव. जब हम कहीं से लीव ले रहे होते हैं जैसे कि बाय बाय हम करते हैं सो दैट इज़ वी आर टेकिंग लीव फ्रॉम दैट पर्सन. सो दैट इज़ आदिया. ठीक है. ओके लेट्स स्टार्ट बाई रीडिंग द चैप्टर. आई होप आप लोगों को चैप्टर की टॉपिक जो है टाइटल जो है वो समझ में आ गया होगा. So from here, Elena va aux États-Unis pour les études supérieures means Elena is going to United States means USA for her superior studies मतलब for higher studies आगे के education के लिए she is going to US. Elle écrit un courriel à ses amis pour annoncer son départ. Means she is writing an email. Courriel you can say email या फिर mail. ठीक है. So she is writing a mail to her friends for announcing her departure. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास मेल दे रखा है जो कि एलेना ने लिखा. इट हैज़ द विच मीन्स फ्रॉम एलेना galimbat@abc.fr. दिस इज़ द ईमेल एड्रेस ऑफ एलेना. फिर यहाँ पर हमारी है डेट सेट ऊट मीन्स 7 अगस्त. फिर ये हमारे के ऊपर ये वाला एक्सेंट आना है. यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्लेस हो रखा है, मिसप्रिंटेड हो रखा है. सो के ऊपर ये वाला एक्सेंट आएगा विच मीन्स टू, जिसको वो भेजने लग रही है मेल. दैट इज़ सेलिन PR@abc.fr, बेरेथ लुइस @abc.fr, फिलिप 23 @abc.fr. तो 3 फ्रेंड्स को उसने एक साथ जो है मेल डिस्पैच कर रही है वो. फिर हमारा दे रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट दैट इज़ डिपार्ट ओ जिताथियनी मीन्स डिपार्चर टू यूनाइटेड स्टेट्स. Chers amis means dear friends, je me suis réveillée ce matin et j'ai ouvert ma boîte de courriel pour lire mes courriels. Means I wake up this morning and I opened my courier box means Gmail जो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हो Gmail मैंने ओपन करा for reading my mails. Et j'ai reçu un message très important and I have received a very important message. Vous le savez que j'ai voulu aller aux États-Unis pour les études supérieures. Means you know it that I wanted to go to the United States for my superior studies. Je suis contente de vous dire que ce matin j'ai reçu la lettre d'invitation de la université et que je me suis inscrite à l'université de New York. Means I am happy to tell you all that this morning I received a letter of invitation of the university and I signed up at the University of New York. ठीक है. तो उसका यहाँ वहाँ पर नंबर लग गया एंड शी विल गो टू USA in New York. Je vous écris pour annoncer mon départ. Means I am writing to you for announcing my departure. Je me suis bien reposé pendant ces 2 semaines et maintenant c'est l'heure de partir. Means I am well rested. मतलब मैं बहुत अच्छे से रेस्ट ले रखा है मैंने during these 2 weeks. 2 semaines means 2 weeks and now it's the time to leave. Je vais partir d'ici le 40 août. Means I am going to leave from here on 15 of August pour être à l'heure pour le nouveau semestre qui commence le 3 septembre. To be on time for the new semester which begins on the 3rd September. So 15 अगस्त को वो लीव करेगी एंड 3 सितंबर से उसका नया सेमेस्टर जो है नया सेशन जो वो बिगिन करेगा. सो टाइम पर पहुंच जाए इसलिए वो इतनी अर्ली जो है लीव कर रही है. फिर आता है j'aimerais bien vous voir avant de partir. I would love to see you all before going. अब यहाँ तो means see you soon Elena. इतना ईमेल हो गया. फिर लुइस फिलिप et Céline se sont rencontrés pour organiser la soirée d'adieu pour Elena. Means Louis, Philip and Céline met for organizing the party or farewell party for Elena. Céline s'occupe d'envoyer les invitations et Louis et Philippe organisent la soirée. Means Selena टेक्स केयर ऑफ द इन्विटेशन. मतलब वो इन्विटेशन भेजने का काम कर रही है एंड लुइस और फिलिप क्या कर रहे हैं पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. फिर यहाँ पर जो हमारा सेलिन मैम है उनका जो इन्विटेशन वो भेजने लग रही हैं सबको वो यहाँ पर दे रखा है. L'invitation means the invitation. Bonjour à tous means hello all. Elena part
Bientôt aux États-Unis pour les études supérieures means Elena is soon going to soon leaving to USA for her superior studies. Nous organisons donc une soirée de départ lors de laquelle nous pourrons dire au revoir à Elena. Means we are organizing a party of departure. Lors de laquelle means during which we are going to say bye bye or we will take leave from Elena. Nous vous donnons alors rendez-vous le dimanche 12 août à partir de 18 heures chez moi à 49 rue de Mazra Metro 7. Means so we give you the appointment, we give you the invitation on 12 August to leave at 18 o'clock, जो हमारे 18 o'clock होता है 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से. सो 12 अगस्त को एंड 18 ओ क्लॉक को वो अपने घर पे इनवाइट कर रही है एंड अपना एड्रेस भी उसने यहाँ पर दे रखा है कि उस दिन एंड उस समय इस वाली जगह पर आप लोगों को आना है, ठीक है. एंड एट लास्ट शी रॉट हर नेम सेलिन. आई होप इन्विटेशन क्लियर हो गया होगा एंड टास्क क्लियर हो गए होंगे किसने कौन सा टास्क लिया. एंड ये हमारा था ईमेल जो कि एलिना ने लिखा है टू हर फ्रेंड्स. अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. इट सेज किसक एलिना अ वुलू फेयर मीन्स व्हाट डज एलिना वांटेड टू डू. मतलब वो क्या करना चाहती थी. शी वांटेड टू परस्यू हर स्टडीज वेयर अब्रॉड इन द USA. सो दिस इज व्हाट शी वांटेड टू. Qu'est-ce qu'elle a reçu ce matin means what did she received this morning. Question number 3. Pourquoi les amis organisent une soirée means why are the friends organizing a party. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ कंप्लीट अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. Pendant les vacances, je me suis bien reposé. So this is the correct answer. Means I have rested a lot. I have rested myself goodly, wellly. Je vais envoyer un dash à mon ami. Means I am going to send dash to my friend. So this is gonna be courriel. ठीक है. Le dash du train est le dash du train est prévu à 7 heures. अब यहाँ पर हमारा heure जो है वो मिसिंग है. सो le départ du train est prévu à 7 heures. ठीक है. Demain j'ai un dash avec mon directeur. Means I have a dash with my boss or you can say manager. So it's gonna be rendezvous. देन आप लोगों को दे रखा है यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट. 2 प्रोनोमिनल वर्ब्स आप लोगों को फाइंड करनी है. 2 नेम ऑफ मंथ्स फाइंड आउट करने हैं. अपोजिट ऑफ अरीवे एंड द अपोजिट ऑफ रेतार ये फाइंड आउट करना है. सो प्रोनोमिनल वर्ब्स आप लोगों को पता है क्या होती हैं. ऑलरेडी हमने कर रखी है. प्रोनोमिनल वर्ब्स वो वाली वर्ब्स होती है जिसके अंदर हम ये दिखाएं कि हाँ वो एक्शन हमने खुद करा है. जैसे कि आई डू, ये मैंने कहा सिंपल हो गया. बट अगर मैं कहती हूँ आई डू इट माई सेल्फ तो क्या करा मैंने माई सेल्फ लिख कर स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये एक्शन मैंने करा है तो मैंने ही करा है. एंड दिस इज व्हाट वी से प्रोनोमिनल वर्ब इन फ्रेंच. ठीक है. प्रोनोमिनल वर्ब और यू कैन से ले वर्ब प्रोनोमिनो सिंपली. ठीक है. सो दिस इज 2 वर्ब्स आप लोगों को फाइंड करनी है प्रोनोमिनल एंड उनको लिखना है. राइट. अब आ जाते हैं हम हमारे ग्रामर पार्ट पर. इस चैप्टर के अंदर देखा था एत्र वर्ब के साथ पासे कॉम्पोजे. हमने 2 चैप्टर्स लिए थे. एक लिया था चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 6 के अंदर तो हमने कल्चर सिविलाइजेशन पार्ट करा था. फिर करा था हमने चैप्टर नंबर 7. तो चैप्टर नंबर 5 एंड 7 के अंदर हमने पासे कॉम्पोजे हमारा कंप्लीट कर दिया था. अब एक इस वाले चैप्टर के अंदर भी हमारा छोटा सा पार्ट आता है पासे कॉम्पोजे का. वो क्या होता है कि हमारी जो प्रोनोमिनल वर्ब्स होती है ना वो पासे कॉम्पोजे में हम कैसे वो करते हैं. प्रोनोमिनल वर्ब्स हम लोगों को पता है je me réveille, tu te réveilles, जिसके अंदर ये आ जाए ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा आ जाए वो हमारा क्या होता है प्रोनोमिनल वर्ब वो हमारी बन जाती है. ठीक है. अब बात करते हैं प्रोनोमिनल वर्ब्स इन द पासे कॉम्पोजे. जो जितनी भी हमारी प्रोनोमिनल वर्ब्स होती हैं जो कि पासे कॉम्पोजे में हमको कॉन्जुगेट करनी पड़ती हैं वो हमेशा एत्र वर्ब को उनकी ऑक्सिलरी वर्ब लेकर हम चलते हैं. ठीक है. एत्र वर्ब ही यूज़ होगी उसके साथ. The auxiliary etre is placed after the reflexive pronoun me, the, se, nu, vu, se, followed by the past participle form. मतलब कि जो हमारा auxiliary etre होती है वो हमारे reflexive pronoun me, the, se, nu, vu, se के पीछे पुट होती है. ठीक है. एंड देन हमारा क्या लगता है पास्ट पार्टिसिपल लगता है. मतलब कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर लगती है एत्र वर्ब फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट.
ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, फॉर्मेशन दे दी, सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एथ्रे, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। य सब्जेक्ट, म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्वी एथ्रे वर्ब, रिवेले पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रिवेले वर्ब। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। कमिंग टू रूल नंबर 2, कहता है अकॉर्डेशन हमें करनी पड़ती है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था कि जो भी वर्ब्स हमारी ना एथ्र वर्ब लेकर चलती है पासिव कॉम्पोजिट में, उनकी जो वर्ब होती है मेन वर्ब, वो सब्जेक्ट के जेंडर के ऊपर हमेशा जो है डिपेंड करती है। सब्जेक्ट अगर फेमिनिन है तो वर्ब भी हमें फेमिनिन करनी पड़ती है, अगर सब्जेक्ट हमारा फेमिनिन प्लूरल है तो वर्ब भी हमें फेमिनिन प्लूरल करनी पड़ती है। तो ऐसे हमारा अकॉर्डेशन जो है चलना चाहिए एथ्र वर्ब के केस में। एंड अभी अभी हमने देखा कि एथ्र वर्ब के साथ जो प्रोनोमिनल वर्ब्स, यस प्रोनोमिनल वर्ब्स हमारी जितनी भी होती है उसके साथ हमारा एथ्र यूज़ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है एथ्र यूज़ हो रहा है, मतलब कि प्रोनोमिनल वर्ब्स के केस में भी हमें अकॉर्डेशन करना पड़ेगा वर्ब का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, एल ए रवेले, अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैंने क्या करा, एल लिख दिया, फिर सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया स, एंड क्योंकि दोनों के दोनों वर्ब थे तो इसलिए स का ई कट होकर अपोस्ट्रोफी लग गया, राइट। फिर हमारा क्या आएगा, एथ्र वर्ब की कॉन्जुगेशन आ गई, एंड देन हमारा आएगा रिवेले। अब मेरे को पता है कि मेरे को अकॉर्ड करना है इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, फेमिनिन है, एंड क्या है, सिंगुलर। तो फेमिनिन सिंगुलर तो मीन्स मैं क्या ऐड करूँगी वर्ब के अंदर, ई, एंड इस वजह से हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, ई ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा कोडेशन। कमिंग टू द सी पार्ट, सी पार्ट हमारा कहता है नेगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं। सो टू फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस, न और यू कैन से न अपोस्ट्रोफी इज प्लेस्ड बिफोर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड पा इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब एथ्र। अब बेसिकली हमें फंडा पता है नेगेशन में क्या होता है, न होता है एंड एक होता है पा, एंड वर्ब उनके बीच में आती है। बट यहाँ पर ना हमारी दो दो वर्ब्स आ जाती है, एक आ जाती है एथ्र भी एंड एक आ जाती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल भी। तो यहाँ पर न और पा कहाँ पर लगाना है, देखो मैं सिंपल सेंटेंस लेती हूँ, ज म स्वी लेवे। ठीक है, ई यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए दे रखा है क्योंकि फेमिनिन भी हो सकता है ज, राइट। तो ज म स्वी लेवे मैंने कहा, तो अब मेरे को इसको नेगेटिव में जो है कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, म जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसके आगे लगेगा न, एंड जो एथ्र वर्ब होगी उसके बाद लगेगा पा। सो ज न म स्वी लेवे, सॉरी ज न म स्वी पा लेवे, राइट। ऐसे हो गया हमारा नेगेशन। फिर आते हैं हमारे इंटेरोगेशन पर, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। सो इंटेरोगेशन कैसे फॉर्म होते हैं, नेगेशन देख लिया, अकॉर्डेशन देख लिया, फॉर्मेशन देख लिया, अब आते हैं इंटेरोगेशन पर। इंटेरोगेशन हमें पता है, टू फॉर्म एनीथिंग इंटेरोगेटिव, so to form the interrogative form of pronominal verb is formed by intonation। सबसे पहला मेथड हमारा इंटरोगेशन फॉर्म करने का होता है इंटोनेशन। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ ट्यू ते रवेले, सिंपल मैंने कहा मीन्स यू वॉक अप, ठीक है। बट अगर मैं कहती हूँ ट्यू ते रवेले, तो मैंने अपनी क्या करा, टोन को थोड़ा सा चेंज करा, एंड जिससे ये हमारा क्या बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है। सो इंटोनेशन मेथड मोस्टली हमारा ओरल केस में यूज़ होता है, हम इसको रिटन फॉर्म में जो है यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो ये हमारे दो बचे हुए मेथड है इनको हम यूज़ करते हैं रिटन फॉर्म में। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले मेथड से, इट इज़ एस्क। हमने कर रखे हैं ऑलरेडी वैसे इंटेरोगेशन, बस जस्ट प्रोनोमिनल वर्ब्स के केस में देख रहे हैं। सो क्या होता है, इस्क हम ऐड कर देते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, एंड पीछे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। जिसकी मैं कहती हूँ च्यूते रवैले, एंड अगर मैं कहूँ इस्क च्यूते रवैले, तो ये हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। थर्ड पार्ट आता है हमारा इन्वर्जन का। इन्वर्जन में क्या होता है, देखो इन्वर्जन में हम लोगों को पता है कि जो सब्जेक्ट होता है एंड जो हमारी वर्ब होती है उनके बीच में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। जो हमारा वर्ब होती है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी जगह तो वर्ब आ जाती है, एंड जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब होती है उसकी जगह हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, एंड बीच में हम हाइफन ऐड कर देते हैं। बट अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास, ये मैं सेंटेंस का एग्जांपल लेती हूँ च्यूते रवैले का। यहाँ पर हमारे पास देखो क्या क्या है, एक तो ए भी है एंड एक रवैले भी है, तो दो दो वर्ब्स तो हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि इन्वर्जन किसका करें, तो इन्वर्जन किसका होता है, ए जो हमारी एथ्र वर्ब है उसका, एंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसका इन्वर्जन होगा। एथ्र वर्ब आ गई हमारी स्टार्टिंग में, क्या बन गया, ए। फिर ट्यू हमारा चला गया एथ्र वर्ब की जगह, क्या बन गया, ये ट्यू, एंड बीच में हमने लगा दिया हाइफन। एंड जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एथ्र वर्ब के साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है, तो इन्वर्जन के केस में ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एथ्र के साथ आगे चला जाता है, एंड पीछे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसके अंदर, सिर्फ हमने प्रोनोमिनल वर्ब्स देखी थी कैसे हम पास्ट कॉम्पोजिट में कंजुगेट करते हैं। आई होप आप लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। एंड कोई भी डाउट अगर रह जाता है फिर भी, सो आस्क मी इन द कमेंट्स, आई बिकॉज आई रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। So we'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye.